Hello everyone, welcome to our YouTube channel Applied Forensic Science for Justice Student Group. I am Ravi Agrawal, volunteer of Applied Forensic Science for Justice Student Group, presenting my topic Introduction of Cybercrime. So the content including in the topic are Introduction, Definition of Cybercrime, History, Characteristic of Cybercrime, Types of Cybercrime, Laws related to Cybercrime, Motive of Cybercrime, and finally safety tips from cybercrime. So let's start with the introduction. Cybercrime is the latest and perhaps the most complicated problem in the world. Because of the early and widespread adoption of computer and internet in the world as well as in India, new technologies create new opportunities and make life easier. But new technology also create new type of crime such as cybercrime. Cybercrime involves fundamental breach of personal and corporate privacy and the use of illegally obtained information to blackmail a firm or an individual. Now, the attack not take place on a physical body, but they do take place on a virtual body called as computer by the means of internet. Due to automation of government servers and rapid increase of interest towards social media platforms like WhatsApp, Facebook, Tinder, etc., personal and biometric information related to every person is revealed nowadays on internet, which can be easily accessed by anyone. So it is right to say in present scenario that information is the true wealth. One who can power to access information of someone's personal life can now control their life by use of internet. तो वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि आज ज़्यादातर लोग किसी न किसी प्रकार से मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या मोबाइल या इंटरनेट के आदी हो गए हैं। व्यापार से लेकर शिक्षा तक हर वर्ग, हर आयु के लोग अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आजकल शासकीय कार्य जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य महकमे भी ऑनलाइन काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किंतु इंटरनेट का उपयोग करने वाले सिर्फ 10 से 12% लोगों को ही इंटरनेट के सही उपयोग या दुरुपयोग के बारे में जानकारी है। हम बिना ज़्यादा सोचे समझे अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं, जिसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है और हमारे साथ साइबर क्राइम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के बारे में ऐसी कोई जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें जिसका कोई भी बाहरी व्यक्ति दुरुपयोग कर सके या जिसके कारण हमारे अपनों की निजता खतरे में आ सके। So next is definition of cybercrime. Here first we talk about the computer crime. Computer crime is a crime in which a computer is the object of crime or computer is used as a tool to commit an offense. कंप्यूटर क्राइम वह क्राइम होते हैं जिसमें या तो कंप्यूटर का उपयोग क्राइम करने के लिए किया जाता है या कंप्यूटर की किसी न किसी प्रकार से सहभागिता किसी क्राइम को करने के लिए होती है, जैसे किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट में बदलाव करना या किसी फोटोग्राफ या वीडियो के साथ छेड़खानी करना आदि। साइबर क्राइम criminal activities carried out by the means of computer by use of internet known as cybercrime or internet crime. It engages people from various geographical areas. Any fraudulent behavior connected with computerization by which someone intends to gain dishonest advantage. Cybercrime is an attack on information about individual, corporation or governments. Hacking is the most known form of cybercrime, but in India, phishing is the most common cybercrime which was happening and recorded day by day, increasing at the rate of 20%. कोई भी ऐसा कार्य जो बेईमानी की नीयत से किया गया हो या जिसका माध्यम कंप्यूटर या इंटरनेट हो और जिससे किसी की निजता या आर्थिक हानि हो, उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। क्योंकि इंटरनेट माध्यम होता है, इसलिए किसी भी जगह से बैठे बैठे किसी अन्य शहर या देश में भी साइबर क्राइम किया जा सकता है। साइबर क्राइम में मुख्यतः किसी की निजी या कंपनी या सरकारी विभागों और योजनाओं की चोरी होती है। उदाहरण के तौर पर चीन के साथ सीमा विवाद के समय भारत और चीन के बीच साइबर वॉर शुरू हो गया था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के देश के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए और अपने जानकारी की सुरक्षा के लिए साइबर वॉर का सहारा ले रहे थे। तो हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम। In 1834, a pair of thieves hacked the French telegraph system and stole financial market information, effectively conducting the world's first cyber attack. दुनिया का पहला साइबर अटैक किसी कंप्यूटर पर न होकर एक फ्रेंच टेलीग्राफ सिस्टम पर हुआ था, जिसमें 1834 में कुछ लोगों ने फ्रेंच के टेलीग्राफ सिस्टम को अटैक करके और उसके कोड्स को चेंज करके फाइनेंशियल मार्केट की इंफॉर्मेशन को चोरी किया था। In 1878, 2 years after Alexander Graham Bell invented the telephone,
a group of teenage boys off the telephone system in New York for repeatedly and intentionally misdirecting and disconnecting customer calls. In 1940, first ethical hacker Rand Carmel, computer expert who owns the machines for government of France used to process information. 1940 में रेन कार्मेल ने फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए नाजियों का सिस्टम हैक करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया था, इसीलिए उन्हें दुनिया का पहला एथिकल हैकर भी कहा गया है। इन 1955, डेविड कॉर्डोन नॉन एज द फर्स्ट फोन हैकर। इन 1981, इयान मर्फी नॉन एज कैप्टन जैप was the first person convicted for cyber crime. 1981 में इयान मर्फी, जिन्हें कैप्टन जैप के नाम से भी जाना गया, पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें साइबर क्राइम के लिए सजा हुई। In 1992, the first cybercrime appeared in India, where the first polymorphic virus was released. In 1999, one of the very first case of cybercrime was that of Yahoo versus Akash Arora in India. After that case, Information and Technology Act was enacted in India in year 2000. In 2012, the first case of cyber fraud phishing was registered in India. सन 2012 में इंडिया में पहला साइबर फ्रॉड का केस रजिस्टर हुआ, जो कि दिल्ली में रजिस्टर हुआ था, जिसका कारण था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में लोगों की जागरूकता का कम होना। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट को काफ़ी विस्तार से लोगों के बारे में समझाया गया और जागरूक किया जाने लगा। इन 2017, WannaCry is the first known example of ransomware operating via worm target a vulnerability in older version of Windows OS. This is the basic history of cybercrime. So moving on to our next topic, characteristics of cybercrime. First point is silent in nature. So cybercrime is basically a background crime by which the victim itself doesn't know about the crime. For example, in case of hacking, the whole computer system or the smartphone was in control of the hacker, but the user does not understand about the hacking, and he didn't even recognize that his phone or system is being hacked. साइबर क्राइम के विक्टिम्स को कई बार पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्राइम हो चुका है। उदाहरण के तौर पे यदि हम फिशिंग के केस देखें तो यह पता चलता है कि जब तक विक्टिम को रियलाइज होता है कि उसके साथ कोई क्राइम हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्लोबल इन कैरेक्टर, because of the availability of internet nowadays in every computer and smartphone, the cybercrime took place a global in nature. One can do crime from anywhere to with anyone, because in cyberspace there are no limits and boundaries. साइबर क्राइम विश्वव्यापी होता है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आज की तारीख में हर फ़ोन एक दूसरे से और हर कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे एक शहर से दूसरे शहर या किसी दूसरे देश या पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी के साथ भी साइबर क्राइम कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस। Nowadays the cyber criminals are so smart and sharp that they erase their footprints from the internet while attempting the crime. So there are lack of evidence and non-existence of physical evidence many times in most of the cases. साइबर क्राइम में सबसे मुख्य कारण फिजिकल एविडेंस का ना होना है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी साइबर क्राइम किसी कंप्यूटर के माध्यम से करता है तो उस कंप्यूटर या उस इंटरनेट सोर्स का तो पता लगाया जा सकता है, पर यह कहना मुश्किल है कि वह क्राइम उसी व्यक्ति द्वारा किया गया जिसका कंप्यूटर है। इसी कारण से हमेशा सबूतों का अभाव बना रहता है। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट हाई इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू डेज बैक देयर आर मास साइबर अटैक ऑन वेरियस साइट्स ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन business companies and government servers for breach of information. About hundreds of government websites were shutting down due to this mass cyber attack. So this type of attacks create a high impact on global nature, which was the new type of warfare system. क्योंकि साइबर क्राइम से एक बहुत बड़े मास नंबर में लोग अफेक्ट होते हैं या गवर्नमेंट की साइट अफेक्ट हुई, इसलिए इस तरह के क्राइम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है और इसी तरह की सनसनी क्रिएट करने के लिए ये साइबर क्राइम आजकल किए जाते हैं।
Fifth point is high potential and easy to predict. Because of high impact, the potential of cybercrime and hackers increasing day by day. So it is right to say that cybercrime is a high potential crime because it is easy to perpetrate. For attempting the cybercrime, only the knowledge of hacking or crime is necessary with a computer system and a fast internet system. दुनिया में हैकरों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए साइबर क्राइम का पोटेंशियल भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और साइबर क्राइम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम और तेज़ दिमाग जो कि साइबर क्राइम की टेक्निकलिटी को समझता हो काफ़ी होता है किसी साइबर क्राइम को कमिट करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. Cybercrime that involve fundamental breach of personal or corporate privacy, such as assaults on the integrity of information held in digital depositories and the use of illegally obtained digital information to blackmail a firm or individual. साइबर क्राइम में किसी व्यक्ति के या किसी फर्म के प्राइवेट डाटा को जिसे डिजिटली सिक्योर करके रखा गया है उसे इलीगली एक्सेस करना और सबके साथ शेयर करना या इलीगल तरीके से डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके किसी को ब्लैकमेल करना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है. There are many types of cybercrime nowadays present and performed in India, such as is the unauthorized access to or control over computers network security system for some illicit purpose. अनइथिकल हैकिंग से तात्पर्य होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी में बिना परमिशन के उसे एक्सेस करके उसकी जानकारी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना. नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डाटा बाय डिस्गाइजिंग वनसेल्फ एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. फिशिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से उसके पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेना और उसे यह विश्वास दिलाना यह जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दी जा रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड या पासवर्ड की जानकारी. नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग इज द रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हैरास और फ्राइटन समवन. साइबर स्टॉकिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लगातार पीछा करना या उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते रहना. फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स और मैसेजेस. Identity theft and invasion of privacy is the most underrated type of cybercrime, but it is seen most of the time to affect a large number of people. Invasion of privacy is the unjustifiable intrusion into the personal life of another without his consent, while identity theft is the crime of obtaining the personal or financial information of another person for the sole purpose of assuming that person's name and identity. इस क्राइम में ज़्यादातर मामलों में विक्टिम को इस क्राइम की खबर नहीं पड़ती. जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आप अपनी कोई पिक्चर या फोटोग्राफ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और उस फोटोग्राफ का उपयोग किसी दूसरे देश में किसी इस तरह की वेबसाइट या फेक कंपनियों द्वारा किया जाता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है. कुछ कंपनियां इस तरह के फोटोग्राफ का उपयोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए करती हैं, वहीं कुछ इलीगल वेबसाइट पे, टेररिस्ट ग्रुप पे या ऑन साइट पे इस तरह की फोटोग्राफ का उपयोग भी किया जाता है. नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट. साइबर बुलिंग इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैरास, थ्रेटन, एम्बेरस और टारगेट द अनदर पर्सन. साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी पर्सन को टारगेट करके उसके बारे में गलत जानकारी देना या अफवाह फैलाना या उसके डराने धमकाने की कोशिश करना. वैसे तो ऑनलाइन किसी व्यक्ति के साथ हल्के फुल्के मजाक करने को साइबर ट्रोलिंग का नाम दिया गया है, पर जब यह मजाक इस हद तक पहुंच जाए कि उसे मानसिक प्रताड़ना होने लगे तब उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है. स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ फेक न्यूज़. दिस इज द मोस्ट टाइप ऑफ कॉमन क्राइम प्रेजेंट इन इंडिया ऑन विच वेरियस टाइप ऑफ मैसेजेस एंड न्यूज़ वर सर्कुलेट इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया to create a nuisance in the society. Sometimes this may be influenced by politically, sometimes it may be influenced by religion or any social topics. Many of the media channels are also part of such fake news.
किसी तरह की धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक बात का दुष्प्रेषण करना जिससे समाज में तथा देश में एक भ्रामक माहौल उत्पन्न हो जाए, फेक न्यूज़ कहलाता है। उदाहरण तौर पे व्हाट्सएप या अन्य फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामाजिक भावनाएं आहत करने वाले मैसेजेस या फोटोग्राफ का सर्कुलेट होना। नेक्स्ट इज एटीएम फ्रॉड, वायरस एंड बोम्स, रैंसमवेयर, साइबर क्राइम रिलेटेड टू फाइनेंस, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल स्पूफिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कंप्यूटर वैंडलिज्म, साइबर टेररिज्म, software piracy and copyright violation, counterfeiting of forgery, denial of service attack, cyber extortion, private trafficking, password trafficking, domain name hijacking, classified global security data theft, etc. are some type of cybercrime. We will try to explain every type of cybercrime. Next topic is laws related to cybercrime. The various offences related to internet which have been made punishable under the Information and Technology Act 2000 and the Indian Penal Code 1860 are enumerated below. First is cybercrime under the Information Technology Act 2000. First is Section 65, tampering with computer source documents. Next is Section 66, hacking with computer systems, data alteration. Next is Section 67, publishing obscene information. Next is Section 70, unauthorized access to protected system. Next is Section 72, breach of confidentiality and privacy. Next is Section 73, publishing false digital signature certificate. These are some laws which are considered as a crime under Information and Technology Act 2000 and punishable with fine and imprisonment. Continue to second point, cybercrime under IPC and special law. In Indian Penal Code 1860 considers some sections related to cybercrime. They are: first, Section 503, sending threatening message by email. Next is Section 499, sending defamatory message by email. Next is Section 463, forgery of electronic records. Next is Section 420, bogus websites, cyber frauds. Next is Section 463, email spoofing. Next is Section 383, web jacking. Next is Section 500, email abuse. These sections are punishable under Indian Penal Code 1860 with imprisonment and fine for both. Third point is cybercrime under the special laws. First is online sale of drugs under Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act. In this, any type of drugs or narcotic substance sales online or any digital medium is a crime under Narcotic, Drugs and Psychotropic Substance Act. Next is online sale of arms under Arms Act. According to Arms Act, any type of sale of any type of firearm is punishable under the Arms Act. So this is the short information about the laws related to cybercrime. Moving on to our next topic, motive of cybercrime. The motivation for cybercriminal can be quite simple. The two that make up the huge majority are money and information. There are some few more points that can be considered as the motive of cybercrime. First is money. Money can be the motive for many types of attacks including ransomware, phishing and data theft. The transaction will often use a cryptocurrency because it is difficult to trace the transaction via cryptocurrency. किसी भी तरह के साइबर क्राइम का मुख्य उद्देश्य पैसा ही होता है। साइबर क्राइम जैसे रैंसमवेयर, फिशिंग या डाटा की चोरी पैसों के लिए ही की जाती है। वहीं कुछ साइबर क्रिमिनल विक्टिम्स का यूज़र और आईडी पासवर्ड जैसा इंफॉर्मेटिव डाटा बेचकर भी अंडरग्राउंड मार्केट में पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मोटिवेशन. दिस इज द मोर known crime. Some political parties are spreading fake news via different type of social media platforms for manipulate election and distribute ransomware. Cybercrime is the growing tool used for achieve the political ends. पूरे विश्व में कई पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा वर्तमान में साइबर
क्राइम का सहारा अपनी पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। इसमें विभिन्न तरह की पॉलिटिकल पार्टियां विपक्षी पार्टियों की बदनामी के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। साइबर क्राइम इस तरह के पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए एक नया हथियार बनता जा रहा है। नेक्स्ट इज फिक्स। Some criminals enjoy being able to exploit weaknesses, while some are do the crime because they can do it. Some have their ideological reason or personal grudges from the product or the company or from a government. कुछ criminals क्राइम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वे वैसा मानते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग किसी कंपनी या प्रोडक्ट के प्रति अपना गुस्सा दिखाने के लिए या किसी गवर्नमेंट के प्रति अपने रोष को प्रकट करने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए उस कंपनी या प्रोडक्ट का बदनामी करने के लिए साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, जैसे किसी के बारे में फेक न्यूज़ लिखना या किसी की बदनामी करना। इनका उद्देश्य पॉलिटिकल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है। कई बार इस तरह की चीज़ें पैसों के लिए भी की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द हैकर। अनएथिकल हैकर साइबर क्राइम को पैसों के लिए ही करते हैं, पर कुछ हैकर्स का मानना है कि वो ऐसा सिर्फ मज़े के लिए करते हैं। हैकर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एथिकल हैकर्स एंड अनएथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स also access the computer system unauthorized manner, but they do it for looking for bugs and reporting them, while unauthorized hackers are criminal in nature and they do it for their personal grudges or maybe financial gains. It is confidence to be unharmed from law. Because of the cyber law of India is not so strict about the cyber criminals, there is always a confidence to be unharmed from law. Lack of evidence is also a main cause for their confidence to be unharmed. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि साइबर क्राइम में फिजिकल एविडेंस का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए साइबर क्रिमिनल्स को ये विश्वास होता है कि अगर वे पकड़े भी गए तो उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाएगा। तो सबूतों की कमी और पकड़े ना जाने का डर भी ना होना साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी टिप्स फ्रॉम साइबर क्राइम। Although we know that the cyber crime is quite different from conventional crime, but our awareness is our prime weapon to fight against cyber crime. वैसे तो साइबर क्राइम एक अलग तरह का क्राइम है, पर इससे बचने के लिए हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। कुछ टिप्स के माध्यम से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, जैसे यूज़ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑलवेज यूज ए गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन which can protect your mobile and computers from the attacking malwares and ransomwares. अपने फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा किसी अच्छी कंपनी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर को अलग अलग मालवेयर्स या वायरस से बचा के रखता है। नेक्स्ट इज इंसर्ट फायरवॉल्स। ऑलवेज इंसर्ट योर फायरवॉल सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वेरियस वायरसेस। नेक्स्ट इज uninstall unnecessary software. Always check that there is any unnecessary software is installed in your computer or mobile phone. Immediately uninstall them and run an antivirus. साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जो कि किसी ऐसे सोर्स से हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उसे इमीडिएटली अनइंस्टॉल करके फ़ोन को एक बार एंटीवायरस से स्कैन करने के लिए चालू कर देना चाहिए। मेंटेन बैकअप टू अवॉइड रैंसमवेयर एंड डाटा थेफ्ट। ऑलवेज मेंटेन अ बैकअप ऑफ योर इम्पोर्टेंट डाटा। रैंसमवेयर या डाटा चोरी जैसे अपराधों से बचने के लिए अपने डाटा का हमेशा बैकअप रखना चाहिए। तो यदि कोई आपका डाटा एक्सेस भी कर सके तो आप उसे तुरंत बंद करके अपना बैकअप का इस्तेमाल कर सकें। चेक सिक्योरिटी सेटिंग्स। कंटिन्यूसली चेक योर सिक्योरिटी सेटिंग दैट आर नॉट अलाउिंग टू एनी पॉपअप्स एंड अननेसेसरी सॉफ्टवेयर टू अलाउिंग एंड इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। अपने कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में हमेशा सेटिंग्स में जाके ये ध्यान रखिए कि कहीं आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी अननेसेसरी डाटा, वेबसाइट या पॉपअप को किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की परमिशन ना दे। नेक्स्ट इज अवेयर पीपल अबाउट साइबर क्राइम। अवेयरनेस इज द मेन वेपन अगेंस्ट द साइबर क्राइम। सो
everyone have knowledge about the cybercrime and their types can aware their family members and friends about the cybercrime and their types. साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता सबसे अहम हथियार है, इसीलिए हमें अपने करीबी दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और जितना हो सके साइबर क्राइम के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए ताकि साइबर क्राइम से लड़ने में यह सहायक हो सके। ऑलवेज चेक द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग एनीथिंग which comes from unknown source or from known source which you find fishy things can be checked first that the information is correct or false, because many of people spreading false information in the society for their personal grudges and for their political motivations. किसी भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसका सोर्स सही है या नहीं, कोई भी घटना जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सही है या सिर्फ एक अफवाह मात्र है। नेक्स्ट, डोंट ओपन अननोन लिंक्स, ईमेल्स एंड मैसेजेस। सम हैकर्स are attached the unknown links and emails and messages in the form of viruses. When you open the link, the virus is automatically installed in your computer or mobile phone, which can be harm your computer, mobile phone or share your all the information with the sender. किसी भी अननोन सोर्स से प्राप्त हुए लिंक को या मैसेज को या ईमेल को एकदम नहीं खोलना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। इस तरह की लिंक्स किसी भी वायरस के साथ आई जा सकती हैं, के द्वारा इस तरह के लिंक्स को खोलते ही आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक्सेस भेजने वाले के पास चल जा सकता है, जो कि एक तरह का साइबर अटैक है। नेक्स्ट इज मेक अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड। इन इंडिया इट इज सीन दैट द पीपल make passwords like quite very simple, like their name, their date of birth and like their phone numbers, which is easily traceable and quite easy to breach. So it is requested that always make alphanumerical password which can be not easily breakable. हमेशा अपने पासवर्ड में अल्फान्यूमेरिक अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ABCD के साथ नंबर्स का भी उपयोग, साथ ही साथ किसी तरह के सिंबल्स का जैसे अल्ट्रा, @ या परसेंटेज के साइन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे आपके पासवर्ड को गैस करना बहुत ही मुश्किल हो। अक्सर भारत में देखा गया है कि लोग अपने नाम का, मोबाइल नंबर का, गाड़ी नंबर आदि का पासवर्ड रखते हैं, जिसके कि बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है और उसे खोला जा सकता है। फिशिंग करने वाले लोग अक्सर इस तरह की पासवर्ड का इस्तेमाल लोगों के अकाउंट खाली करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज चेंज पासवर्ड कंटिन्यूसली। ऑलवेज चेंज योर पासवर्ड कंटिन्यूसली विद इन अ वीक और अ मंथ। हमेशा अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, एक ही समय तक ज़्यादा लंबा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए ताकि किसी पासवर्ड का पता लगाना किसी के लिए आसान ना हो सके। नेक्स्ट इज डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन सच एज पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन और OTPs. In India, the phishing scam of Jamtara is a very well-known case in which some random person call you as a bank officer and ask for password and OTPs of your credit card and ATM cards. So be aware about these people and don't share your any type of password and security questions. इंडिया में ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाके के लोग ज़्यादातर जिन्हें बैंक से काम नहीं पड़ता, अक्सर बैंक से किसी भी तरह के फ़ोन या कॉल्स के प्रति सहम जाते हैं कि उनमें जागरूकता की कमी होती है और उन्हें लगता है कि जो बैंक से फ़ोन कर रहा है वो बैंक का ही कोई अधिकारी है, इसलिए वो इस तरह की भ्रामक जानकारियाँ और जालसाजी में फंस जाते हैं। इन्हीं के साथ कुछ पढ़े लिखे लोग जो कि जागरूक होते हैं फिर भी जालसाजों की बातों में आकर अपनी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन या पासवर्ड जैसे कि OTP वगैरह क्रिमिनल्स के साथ शेयर कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें पैसों की हानि देकर उठाना पड़ता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस बारे में लोगों को जागरूक करिए कि किसी भी तरह के बैंक से कभी भी किसी भी तरह के OTP के लिए सवाल नहीं किया जाता या कभी भी फ़ोन पर किसी से उसकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगी जाती है। अगर हम इस तरह की अवेयरनेस अपने आसपास फैला पाए तो कई लोगों को इस तरह के Thank you everyone for watching the video. Be aware, be safe from this type of cybercrime. For any suggestion, question, query, advice, please visit the comment box. If you like the video, please share, subscribe the channel Applied Forensic Science for Justice Student Group. Thank you.